और टाइम से AES में हो ना. What is the full form of AES? Oh shit! I need to Aisha? Okay, I've done the licensing, so I know. You answer. My God. You know it? I Let me hate see if you you. remember. बोल first. I'm like, I told also in the 30-second I'm an entrepreneur and I have a space that I wanted to do, and she did not give me bow. I'm like, Allah. chuck. And today is the day. Now we go on staycation. Hello everyone, this is Aisha Sheikh. Welcome to my podcast, Aisha with Aisha, powered by Procast Studio Dubai and AMG Digitech Services, your one-stop solution for all your printing, designing and digital marketing needs. So today we've got two amazing dosts of mine, the Laughter Queens, अभी मेरी ज़िंदगी में उनका नाम ऊपर से है, अभी ज़्यादा ही वो लोग मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व है. टू ऑफ माई पर्सनल फेवरेट पीपल, हंसना बंद करो वहाँ पे. They are Marina and Pavitra. Pavitra, thank you so much for introducing Marina. I don't know तुम मेरी ज़िंदगी में कैसे आए, लेकिन अच्छा हुआ है जिसी भी इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह. And welcome to Chai Shai, Marina and Pavitra. कभी सोचा तुम लोगों ने ज़िंदगी में तुमको चाय शाय पे आने का मौका मिलेगा? Yes. मैंने फोरकास्ट किया था कि मुझे इस लड़की को लेकर आना है एज अ होस्ट. तो मेरा तो क्या बोलते हैं, मेरे दोनों अनमोल रतन ऑलरेडी एज अ होस्ट आ चुके हैं, तो मेरा तो सपना पूरा हो गया. हाँ, फॉर 2024. Alhamdulillah. And we are coming back to that segment as well. But Marina, I must thank you. If it was not for you and not the studio, I would not start the Procast. देख इतना Procast बात कर रहे पॉडकास्ट इस साल में, because that was in my vision board 4 साल पहले. But I couldn't do it. And अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कौन बार एडिटिंग में, कोई मैं इवेंट जाती हूँ तो ही रील मेरे को करना पड़ता है ना, उसमें इतने ड्राफ्ट्स निकलता है. आई एम फेड अप ऑफ दैट. तो इफ आई एम गोइंग टू डू अ पॉडकास्ट एंड मेरे को पूरा देखना पड़ेगा, आई डिडंट वांट टू डू. व्हेन यू केम अप विद दैट ऑफर, ये है, ऐसा है, अपना ये हो रहा है, एंड आई वाज लाइक करते हैं नहीं करते हैं. बट व्हेन यू इनवाइटेड मी एंड आई देन सॉ, आई एम लाइक दिस इज समथिंग आई वुड एंजॉय. देन आई वाज लाइक उसी दिन मैंने किया, लेट्स डू इट. चाय शाय विद आयशा इज कमिंग अप. So I inspired her to do the podcast. Yes. And she keeps inspiring me to wear these attires, traditional attires, which I left it in my college days. Yeah. Thank you. Thank you so much. All my meetups as well. The Marina Pearl is like अभी सबके मुंह पे है वो, कहाँ हो रहे, Marina Pearl में हो रहा है next meetup. So yes. So thank you so much for that. But दुकान बंद कर रही हूँ. I'm not liking that. Guys, please vote करो इसको नया दुकान खोलने के लिए. And moving forward, पवित्रा, I love you man. I love मेरे you too. पूरे कंपनी का मिक्स भाजी जहाँ था सब मिला के तूने एक नया फॉर्म किया. Thank you so much. It's AES Edu Marketing Events Network, FZE, all because of this girl. Yeah, I literally ate her hair. मतलब लाइक मेरे को नहीं लगा था कि मैं एक्सेप्ट करूँगी तुम्हारा प्रपोजल, बट शी वॉज लाइक, इसको अगर कोई पसंद आ गया एंड देन शी विल बी बिहाइंड द लाइफ कि ये करो तुम, बिकॉज शी इज़ रियली योर वेल विशर. तो इसने बहुत मेरे पीछे पड़ के मेरी कंपनी को फॉर्म किया. I love you. Love you too. I want Thank to you give a so shout much. out here as well. You know, when you do business setup, rarely people think from all angles, and that's what a speciality as Pavitra has. You know, people can directly go and do it. Yeah. They can go and do it, but then they will be choosing just one activity or two activity. With her, you get like a full package. So a person knows you in and out, and that's what makes you so different. And I'm so proud that this studio I'm sitting in is also formed by her, and I love the way she has put activities in my license. Wow. इलित पटा ले, रोना आ रहा है तेरे को. I have one from you. So thank you guys. Thank you so much, Aisha. I think women empowerment बोल सकते हैं, women supporting women, जो हम लोग कर रहे हैं, एक दूसरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं. I don't think किसी को बोलना भी पड़ रहा है मेरे को आके सपोर्ट करो. We are there behind. किसी का हो रहा है, मरीना का कुछ हो रहा है, हम दोनों है, इसका कुछ हो रहा है, हम लोग हैं इसके पीछे. लाइक वाइज फॉर मी, मेरे को चाहिए तुम दोनों पीछे से रेडी ही रहते हो. आई शुड जस्ट गिव अ शाउट आउट या जस्ट टेल अस व्हेन टू डू. बट वो अलग बात है कि 2 दिन बाद रिस्पॉन्ड करेंगे. हम संडे के दिन भी आते हैं, only for teacher. Only for Aisha. टीचर लोग संडे के दिन छुट्टी लेते हैं. Whatever. Okay. Now, Marina का जो
तुम पहले बताओ, how did Let me thank you guys first for the compliments that you guys gave. I was waiting. हाँ बोल ले जो भी बोल ले. Okay, so thank you, Aisha. It was an honor actually for me to get the licensing and legalize AES. Making sure everything that you wanted, सब कुछ जो भी आपने बोला, कुछ भी नहीं छोड़ना था You मुझे. added extra also. And yes, and we made sure कि आपका license is exact in one umbrella, क्योंकि you are multi talented, आप सब कुछ करते हो. अभी और कुछ नया भी आएगा वो भी आप कर सकते हो because your license is already ready for that. So congratulations on it, and thank you for giving me an opportunity to work on your project. And yes, Marina, thank you so much for giving me an opportunity, and I hope you guys get more and more and more prosperity. I mean, Procast और multiply हो और AES का full stop कभी नहीं हो. So you know, touch wood, and it will keep growing. इंशाल्लाह. आमीन. और एनरिच वेंचर्स सिर्फ दुबई को ही नहीं, ग्लोब को रिकॉग्नाइज करें. Yes, आमीन. ये मैनिफेस्टिंग. तुम्हारा भी वो करेंगे. तुम बताओ, तुमने तो ऑलरेडी पूरा सेटअप किया. मुझे TEDx स्पीकर बनना है, तो उसके लिए इंशाल्लाह. मेरा स्पीकिंग स्किल्स बेटर होना चाहिए. इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट 2025 में you'll see us doing all of that. Okay, now what time से AES में हो ना? What is the full form of AES? Oh shit. I need to Aisha? answer. Okay, I've done the licensing, so I know. You answer. My God. Do you know it? I Let me hate see if you you. remember. तू बोल first. आयशा. Education. हाँ. S. सब्जी Shake. मंडी. Can I say Aisha EdTech Services? वो पहले था, उसका न्यू वाला क्या है? बिकॉज आयशा अभी शेख जो- सर्विसेज था, उसी से AES बना था. हाँ. बट देन बिकॉज AES को इतना फेम मिला एंड आई हैड टू हैव दैट ब्रांड नेम, तो AES का मैंने दूसरा वाला किया है. व्हाट इज इट? तुम दोनों को नहीं पता हो. आयशाज एम्पावर्ड स्पेस. फ्यू माइक्स ड्रॉप. My God. Aisha's empowered space. मेरी कंपनी का नाम यही होने एलन वाला मस्क था. को मिली हो क्या तुम? नहीं तो. जैसे मैंने सोचा स्पेस है इसके लिए. ओके, सो तुम लोग कितने टाइम से हो AES में? फॉर यू इट्स बीन 2 years. हाँ, बट तब तो AES was आयशा शेख EdTech Services only, because Yeah, yeah, आप yeah. जब भी इंट्रोड्यूस भी करते थे तभी था. Yeah, yeah, yeah. अभी ये जो रिसेंट अपडेट हुआ है, आपने शायद उसका रील नहीं डाला, हमने नहीं देखा. आपने बना के आपके साथ रख लिया तो हमें पता नहीं चला. गुड आइडिया, आई शुड पोस्ट इट. Yeah, Yes. but now that you have mentioned it, I will keep this in mind, and I know. बता वापस क्या है? Empowered space. Aisha empowered. आयशाज एम्पावर्ड स्पेस. Okay, गोली से मार डालो रे इन दोनों को. तुम टीचर का काम करना बंद करो. छोड़ दे अभी, तू मेरे को डिस्टर्ब मत कर. ऑलमोस्ट 2 years ना AES में हो साथ में, तो हम लोग मिले कैसे वैसे? No, I don't no, not remember. 2 years. I think 1 year, 6 months, like that. From the time I started Enrich हाँ. Ventures. So yeah, I don't know if you remember, we were in a common networking event, which happened on Sheikh Zayed Road. And a common friend introduced me to you. अच्छा. Well-wisher introduced me. That's when I saw you for the first time. And we didn't click that time because Yeah. हमने बहुत सारे लोग से मिले थे उस दिन. एंड हाई बाय हुआ एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आपसे मेरे को इनविटेशन आया था WHH नेटवर्किंग के लिए, मतलब इट वाज अ ब्रंच, यू नो, coffee meeting. हाँ, कॉफी मीट के लिए. एंड आई वाज लाइक ओके, दिस लुक्स फन. वो इट वाज नथिंग फॉर बिजनेस, बट इट लुक्ड फन फॉर मी बिकॉज मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पास दोस्त नहीं थे. Yeah, I know. आई वांटेड टू कनेक्ट टू पीपल, एंड यू नो थोड़ा डिफरेंट था मेरा माइंडसेट. ये 1 घंटा पहले आके बैठती थी मेरे मीटअप में. अभी 1 घंटा बाद आती है, वो अलग चीज है. अब इवेंट खत्म होने के टाइम पे खत्म होने आती के है. बाद आती है. गाइस एक बार आ गई यार, उसको रख के तुम लोग. नहीं, इस बार जल्दी आई थी वो मरीना लास्ट वाले मीटअप. I was on time. I was not the first 5 people, but I was the 6th person. Still appreciated. Still okay. On Good time. job. So yeah, and then WHH happened, and then another one happened, and then another one happened, and then we connected and we met, and we I was invited for the high tea at your house, and then we connected even more. And, Yeah. you know, we had amazing Such common serious friends. person you were. She wouldn't talk to anyone. मेरे को लगा इसके साथ क्या क्या बुलवाऊं मैं इनको. And she Actually, would be मैं बहुत डरी हुई थी. Actually, we can see Actually, that. मैं बहुत डरी हुई थी because I came from a proper corporate background. And the crowd I was mingling with were all, you know, very fun. Fun-loving. Like मुंह पे आया बोल देते थे. उसके बाद अरे यार सॉरी कर ले ऐसा वाला. And I was like, I was very new to that kind of friendly crowd. हाँ. तो मेरे को वो डर था कि कोई मुझे मिसजज कर लेगा, या मैं कुछ फ्रेंडली बोलने जाती हूँ और वो कुछ
अलग सा होगा कन्वे हो जाता है. तो आई वॉज टेकिंग माई टाइम एनालाइजिंग माई वाइब पार्टनर की ओके किसके साथ मैं मजाक कर सकती हूँ, किसके साथ मैं नहीं कर सकती हूँ. वो सब चेक करने के बाद मुझे पता चला सब यहाँ पे सटके हुए हैं, सब हमारे जैसे. मैं सब सटके हुए. मैं खामखा इतनी डर रही थी कि ये क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगी, सब मेरे टाइप से. देन आई गॉट the real comfort zone and अभी it's crazy. I know. We went out on a girlycation, सब कुछ staycation and किया सब कुछ हमने, हो गया हमारा अभी. अल्हम्दुलिल्लाह. एंड यू देन इंट्रोड्यूस मी टू दिस ब्यूटी. और Exactly. ये आके मेरे मीटअप में मेरे को जज कर दिए. स्टेज के ऊपर डालो, लाइट डालो इसके ऊपर. यही थी वो. इसने बोला क्या किट्टी पार्टी में आ गई हूँ साड़ी वीडी. यही बोली थी ना तूने. ऐसे गच्छ. ऐसे शर्म नहीं आती. नहीं नहीं ऐसे नहीं बोला था, फॉर्मेलिटी के लिए बोल दी थी. तो बता तेरा फर्स्ट इम्प्रेशन. So thanks to Pavitra, we went for the I think कौन सा रेस्टोरेंट था वो करामा में. Food something था. अब उसका ब्रांडिंग करना है तुमको बोल सकते हैं हम लोग. नाम बता दो. नाम पता ही नहीं, अभी वो चेंज हो गया. इंडियन डिलाइट्स. इंडियन डिलाइट्स. Yeah. Yes. उसमें हम गए थे एंड द मोमेंट आई एंटर्ड आई वाज लाइक सब साड़ी में है एंड आई थिंक वी वर कॉर्पोरेट. Yeah, there was another person who was like from corporate. इसी ने बुलाया था उनको भी बेचारी को. वो भी clueless हो गई थी कि कहाँ आ गई हूँ मैं करके. But in your event, I met my Mangalorean buddies. कौन है वो? अच्छा. Roshni was one, and there was another lady. I did not get connected back to Okay. her. I need to अब मैं figure करा out. सकती हूँ तो नाम Yes. बताई तो. नाम और मरीना याद रखे तो कुछ और ही हो जाए. But yeah. So that's was my first impression. There was a lady with the ginger garlic. Yes. Yeah, I'm like ginger garlic भी बेचा जा रहा है and I think someone was doing food, Yeah. someone was doing tires, cake. I'm like किधर आके मैं फंस गई. That was my first. टिश्यू दे दो यार मेरे को पास. And then I tried talking to her. Okay, by the end of it, she had worn something in blue sari. If I'm ब्लू not नहीं था, wrong. येलो था. No. I don't even remember. Okay. We'll So I'm not even commenting on this. Yeah, somewhere I think it was a blue sari, but maybe something else. I don't know. But I tried talking to her. I'm like, Aisha, you know what? I have a space here. She's like, नहीं. I have to make कुछ emergency आ गया, मुझे जाना पड़ेगा. I will talk to you Yeah, I later. was supposed to. I had a flight that night. And already I'm a judgmental person, so I judged her there and then. And I'm like, क्या है? कुछ भाव भी नहीं दे रही है. अरे अल्लाह. And I remember my 30-second. And everybody was like, you know, I'm a homemaker. No offense, guys. I love whatever you guys are doing. But I was there, you know, I'm an entrepreneur. Like a reverse dialogue is what I gave. And I'm like, I told also in the 30-second, I'm an entrepreneur and I have a space that I wanted to do. And she did not give me bow. I'm like, Allah. chuck. And today is the day. Now we go on staycations, dinners, and घर like तक पहुंचे हो 4 तुम मेरे. hours of phone calls in a week. I know. And I have no idea what else we do. या एक्चुअली तुम्हारी वजह से मेरे लोकल मिनट्स खत्म हो गए. तुम रिचार्ज करके जाना इसके बाद. And also one more thing I want to address is thanks to this girl. She pushed me and I think she pushed you. You came back in after good 3-4 months of break. Yeah. उसको जगह कहीं और मिल नहीं रही थी, ठीक है, comfortably as Marina Pearl. That was the real reason. True. But she came back, and after you came back, there have been a lot of things happening at Marina Pearl. So thank you, and it is a lesson for me and people like me. Never judge a person by its cover. Never judge Aisha, okay? Yeah. Shahid, stop laughing there. Yeah. So just try and explore few pages, and then if it is boring, then you can shut the book down. Yeah. I'll continue from where it was. जल्दी जाना था. उस रात को मेरे को फ्लाइट था अबू धाबी से और हमारी मीटअप खत्म हुई थी 2 बजे. And this lady was supposed to take me to the Shams office. That Yes. was again for business purpose only. License का मेरा renewal का time हो रहा था and she was supposed to do. So she had taken me there. हम दोनों याद है येलो साड़ी डाल के फुल में झगमग. I was office I वाले. was in the parking and I was calling her. Aisha, you're done. Oh yeah. Aisha, She you're done. was calling me back to Aisha, you're back. done. हाँ. तो मैंने सब छोड़ के उस दिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम वरना सबको बाय बोल के निकलती हूँ. उस वक्त ऐसा हुआ था. बट यू नो आई एम सो ग्रेटफुल कि मंथ्स डाउन द लेन मैंने इनको पूछा कि तुम लोग कहाँ कर रहे हो आजकल. आई हैव सीन यू समवेयर करके. तो शी सेड कि इधर चले जाओ. एंड आई स्टिल डिडंट नो इट वाज योर्स.
I thought Twiga is the owner. Fantastic. Hustle. I would love for people to assume that these are people like Rishan, Twiga, Shahid, they are the owners. फिर मुझे phone calls कम आएंगे. Because मैं ट्विगा से प्रॉपर बार्गेनिंग कर रही थी वहाँ पे, एंड ट्विगा को बोला 2-3 इसमें, एंड शी वाज लाइक, शी सेड आयशा लेट्स डू दिस फॉर यू करके. मैंने बोला अच्छा, अब मैं जंप कर रही हूँ. मैं इसको बोला, मैंने वाह क्या बंदे दिए तो उन्हें करके. देन आई गेट टू नो कि ये ओनर है वहाँ पे, एंड आई एम लाइक शी इज ऑलरेडी इन माई कम्युनिटी, एंड मुझे नहीं मालूम था. एंड फर्स्ट 2 टाइम्स में शी डिडंट क्लिक, बिकॉज उसको भाव नहीं मिला था इट सीम्स मेरे पास, उसने मेरे को भी नहीं दिया था. सो लेटर वन फाइन डे व्हेन शी केम, मैं वो आयशा नहीं बनी. तब उनको टाइम मिलने लगा. बट अल्हम्दुलिल्लाह मंथ्स डाउन द लेन वी आर लाइक दिस टुडे. टच वुड का है, तुम लोग का वुड वही है. मुझे लगा यहाँ पकड़ोगे. नहीं ये वुड है. Alhamdulillah. Let's move forward. We have. I want to know a little bit more about y'all. जैसे I get to know so much day by day what y'all do. एक तो इसके दुकान इतने सारे खोल रखी है इसने. Yes. I want you to tell everybody what exactly you do. How many businesses you own? So I have been in the real estate industry over 10 years now. Started my real estate journey from Dubai, and over a period of time, I made commercial real estate as my core thing, and then eventually started off as a business center community. So I have 4 business center under my umbrella. They are in Garood and Dera location, and there will be one more upcoming soon. That's the Marina Pearl. That is going to convert into a business center soon. Apart from that, I'm a girl who likes to take risk. And I take risk and then I evaluate कि अरे ये नहीं करना चाहिए था या बहुत अच्छा हुआ ये किया. So that's why I have a podcast studio. I even have few jewelry items that here and there I like to sell it. That is also there under my umbrella. I didn't know that. Yes. And how I started is I made my husband resign his job of 12 years. Wow. And I told him बहुत हो गया, कुछ अपना करते हैं करके. And then that's where the business formation company started. That was our starting point. But मेरे को है ना चिक नहीं जमता. ये डॉक्यूमेंट ये नहीं है, ये पार्टनर चेंज है, blah blah blah. So I'm very bad with documentation. I'm a Mufat girl, so I like talking more. मैंने business center is taken care by my husband, and I am more into the marketing angle of all the, and how I do it is I have an incredible team. Yes, they have their ups and downs. कभी सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं. Communication error तो my God. But the beauty of all of them is that they make my operations go very well. And wherever if Twiga is there, that's why I can have more and more bonding conversation with you, because she takes care of the bookings and all of those. These people are there. That's why the social media is back there and up and running. I get to meet a lot of new people, new ideas come in, because I have Afia and Rishan who take care of most of my... Afia, I don't know. I haven't. Yeah, so she is into the business setup. She takes care of everyone's visas and things like that. So because of my team, I am able to go forward, and I wanted to actually get down and make 10 business centers. But rather than doing that, I'm loving the vibe, how I bought podcast in this location. I would like to bring in some different business in each location. So there is a vibe, there's an energy that flows in, and people can make wonders and good memories. So I'm a believer of making good memories and taking it forward. Thank you. And that's long way to go. हमें भी हिस्सा बना ले उसके साथ. Yeah, and I would like to actually add, because Marina is someone who is having multiple businesses. She's a serial entrepreneur, right? So in the I initial... love the word serial entrepreneur, like serial killer. Yeah, actually it's called serial entrepreneur, where you have multiple businesses. You can also call yourself a serial entrepreneur, because I don't know what else we need to add in that role. So yeah, and from the initial stage I knew like she has a lot of businesses and all of that, but I never had experienced any kind of ego or attitude or a show off, so which made it so comfortable to
be around her or discuss anything with her. And also the business setup part. So even I'm doing business setup, when she has a business setup, she's never let that be a conflict of interest between us in terms of friendship or in terms of a networking community, because for me this is my base. Business setup is my base, and for her business center is her base. Yes. Okay. So whenever we are in a common networking event, she never talks about the business center, she lets it for me. I've seen that. Yeah. So a lot It's of business setup. She talks about business setup in the in the community. And me, any business center or office related business, every month it goes to her. So it has become like that. So we are not actually, we both can be an actual example of like a collaboration and not a competitor, because we are very good friends, and business also is very good, touch wood. And because when I see a lot of people where they just start off and it's a new business and it hits their head and they feel like they are in sky high right now and showing so much of attitude and all of that. And when I see this lady, because she is one person who genuinely believes in supporting other women. True. And any opportunity she gets, she's purchasing from them. And the best part is she's purchasing even if it is not going to be of a help, and then she gives it to someone who might need it. So it's helping two people at the same time. So I've seen a lot of that, and you don't have ego. So Marina, please keep up. I think because Yes. of this love attitude you. and this characteristic of yours, you're going to go a lot of other heights. I'm becoming emotional literally. दे दो इसको कर्चिफ. Aisha, yours time. Yours only. But yeah, yours time. नहीं मरीना, I would agree with what she has said, and please be humble. ऐसे हमेशा रहना, हंसते मुस्कुराते. And I think there's a long way for all of us together. If we join hands, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग अपने अपने influence से, इंशाल्लाह. Wood touch करो, touch. Now coming back to Pavitra. Yes. I heard you have sold your jewelry and all. See, actually, She has a lot of gold chain though right Oh now. my God, I see it. I think you got it back. और तुम्हारे झुमके South भी. Indian है. so actually that was not a reel which was posted fully. It was just a part of it which was posted. So this was the initial stage, right? When I had started business. They say that the grass is always green the other way. क्योंकि जब हम देखते हैं कि अच्छा कोई business कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, हमें भी वो ये लगती है कि यार कर लेंगे, क्या हो गया, कितना साल किया है, हम भी कर लेंगे. तो हम क्या करते हैं, हमारा जो जॉब है, जो मंथली फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ में जो हमें सैलरी मिल जाता है, हमें लगता है यार उससे दुगना तिगना कमा लेंगे और क्या कर लेते हैं. बट जब आप स्टार्ट करते हो ना, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस. Yes. मैं सिर्फ लाइसेंस और सेटअप के बारे में बात नहीं कर रही हूँ. Understood. मार्केटिंग कॉस्ट हो गया, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गया, अपने Even your वीजास space. का कॉस्ट हो गया, आपको कितना कुछ आता जाता रहता है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू. Yeah. राइट. तो क्या होता है, जो आपने एक कैपिटल कंपनी के लिए आपने प्लान किया है, इट्स लाइक Understood. तो क्या होता है, अभी दुबई में यू कांट टेक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम एनीबडी. Yeah. इट्स नॉट एज इजी एज इट सीम्स. तो देन इज व्हेन आई थॉट ओके, एंड मेरा नया शादी भी हुआ था सुनील के साथ, तो आई हैड अ लॉट ऑफ ज्वेलरी एंड आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन. मैं बहुत कम ज्वेलरी पहनती हूँ, थैंक्स टू आयशा की बहुत कुछ उसने. Sponsored by AES दुपट्टास and earrings. सो आई वाज लाइक ठीक है, अभी रख के क्या करना है, तो प्लेज कर लेंगे, आगे जाके बिजनेस आ जाएगा. तो मैंने डिसाइड किया था कि ठीक है, लेट्स प्लेज वॉट एवर वी हैव राइट नाउ, एंड जैसे ही थोड़ा बहुत बिजनेस हो जाता है, एक एक करके वापस हम ले लेंगे. सो द रीजन मैंने क्यों वो बोला था वाज ऑल्सो बिकॉज हमें सोचते हैं मैं बजट में हूँ, मुझे लाइसेंसिंग करना है, आई एम ऑन अ बजट, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, आई एम ऑन अ बजट. आई हु सेट अप बिजनेसेस, I thought that is how people start business, कि एक बजट लगा के स्टार्ट करते हैं, which was so wrong. Business setup एक बजट में नहीं हो सकता. It is, अगर आपको पैसा लाना है तो पहले पैसा डालना पड़ेगा, फिर आता है पैसा, बिकॉज दुबई में सब कुछ लीगल होना चाहिए. तो उसमें जाके मेरे ज्वेलरीज वगैरह गए, आगे वापस. थैंक्स टू गॉड, यस, बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट प्रायोरिटी ऑल्सो. क्योंकि शादी के ज्वेलरीज आपको आप यूज़ करते हो नहीं यूज़ करते हो वो अलग सी बात है, बट जब तक वो था मुझे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा. वो जब गया मुझे बहुत लग रहा था, सेंटिमेंट होते हैं. हाँ, जाने के बाद मुझे लगा कि यार मुझे ये वापस चाहिए, एंड इट टुक टाइम. ऐसा नहीं कि हाँ जैसे मूवीज में दिखाते हैं ऐसे दिया और ऐसे ले लिया. मुझे 1 year के ऊपर लग गया वापस लेने में, बट हाँ
बट व्हाट ऑल यू डू इन योर बिजनेस? बिकॉज एक तो मेरे को मालूम है तुम बिजनेस सेटअप करती हो जो हमारा किया है AES का, ओके, बट अदर देन दैट व्हाट एग्जैक्टली यू डू? तो मेरा कोर बिजनेस है लाइसेंसिंग एंड बिजनेस सेटअप, बट आपको आमिर सेंटर पता है? आमिर सेंटर में जहाँ पे गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, पता है, बोल देती हूँ। तो जस्ट ऐसे ही 2 सिस्टम्स मैंने इन हाउस रखा है, Okay. ताकि वीजास को जो काम होता है मुझे बाहर ना देना पड़े, क्योंकि क्या होता है, टाइम कंज्यूम होता है। ओके, मेरा PRO जाएगा, करेगा, वापस लाएगा। जब वो इन हाउस हो जाता है, मैं टाइम के साथ प्ले कर सकती हूँ। जो चीज़ 2 से 3 दिन लगता है वो शायद मैं 1 दिन में कंप्लीट कर सकती हूँ। तो सारे वीजास का जो काम होता है, जो PRO सर्विसेज होते हैं, तो बड़े बड़े कंपनीज का क्या होता है, वो एक PRO हायर नहीं करेंगे, क्योंकि हार्डली 1 महीने में वो 2 वीजा करेंगे या 2 वीजा कैंसिल करेंगे। सो बट उसका रेकरिंग बिजनेस होता है, सारे एक्सटर्नल अप्रूवल्स के सब हमें आउटसोर्स कर देते हैं ऑन अ मंथली बेसिस। तो वो जो ईमेल में डाल देंगे कि ये करना है, और मेरा टीम इन हाउस है जो PRO सर्विस कर देगा। एक्सटर्नल अप्रूवल हो गया, बैंक अकाउंट हो गया। हमारा सर्विस क्यों रिकमेंडेड है इज बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस। मैंने कभी भी किसी को भी लाइसेंस नहीं बेचा है। मैंने उन लोग को अपना जो ड्रीम था वो करेक्ट लाइन में एक्सपीरियंस के साथ प्लान करके उनका बिजनेस सेटअप किया है। क्योंकि लाइसेंस तो कोई भी बेच सकता है, वो खुद भी जाके लाइसेंस ले सकते हैं, बट वो मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद बहुत डिफरेंट है। मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आपका क्या आइडिया है, क्योंकि जब जाके कोई लाइसेंस लेता है उसका सिर्फ 1 साल का वो देखता है, रिन्यूअल में अटक जाता है। बट जब इनिशियल स्टेज में उसको पता चल गया कि अभी ये लाइसेंस है, उसका 1 ईयर में उसको ये रिटर्न लेना है, वो ये सब कर सकता है, ये लाइसेंस के साथ और भी कुछ कर सकता है, और रिन्यूअल भी आएगा, तो वो ऑलरेडी माइंडसेट उसका प्रिपेयर्ड है। तो ऐसे बिजनेसेस ज्यादातर चलते हैं, एक रिन्यूअल में खत्म नहीं हो जाते। तो ऐसे बिजनेसेस मैं सेटअप करती हूँ। एंड आपको जैसे ही पता है, मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ, मुझे बहुत गर्व की बात है ये चीज़ कि मेरे 70 to 75% क्लाइंट्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। वाओ, यू नो, ताली बज नहीं रही है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी हैं औरतें जिनको घर से काम करना है। मैं पेंटिंग बना रही हूँ, या मैं कुछ आर्ट वर्क बना रही हूँ, या मैं कुछ हैंड मेड फ्रिज मैग्नेट्स में बना रही हूँ, बट मुझे ये लीगल तरीके में मुझे ये सेल करना है, और मुझे एक मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि जैसे वो लोग लाइसेंस में इन्वेस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली उनको एक मोटिवेशन आ जाता है कि यार मुझे ये पहला पैसा मुझे रिकवर करना है, उसके बाद मैं और बिजनेस करूँगी। तो ऐसे लोग जो उनके ब्रैकेट बहुत छोटे हैं, एक पेंटिंग बेचोगे आप कितना आएगा, 100 200, बट स्टिल वो लीगली करना चाहते हैं। ऐसे लोग को मैंने कॉन्फिडेंस दिया है कि इट्स नॉट एक्सपेंसिव। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको मदद कर सकती हूँ, एंड मैं लाइसेंस दिला सकती हूँ। बहुत सारे लोग को लाइसेंस दिलाया है, हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ, वॉचिंग अस राइट नाउ, एंड हु आर डूइंग देयर बिजनेस लीगली। कमेंट्स करो फटाफट से। यस, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, एक्चुअली स्पीकिंग। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉर्पोरेट है, उनको तो पता है, वो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका अलग बात है। बट ये लोग जो अपने मेहनत के बल पे पॉकेट मनी, आई हैड अ लेडी, उसके हस्बैंड एवरी मंथ उनको पॉकेट मनी देते हैं, तो पॉकेट मनी को सेव करके उसने अपना लाइसेंस लिया है। तो ऐसे लोग जब हम देखते हैं तो हमें खुद मोटिवेशन आ जाता है कि यार, एंड ये होना भी चाहिए पवित्रा। आई डोंट थिंक एवरीवन इज गोइंग फॉर दैट लाइसेंस थिंग। वो लोग सामान लाइक सब कर रहे हैं, हम क्यों नहीं टाइप्स में, बट देन इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स कि लीगली अपने आप को अप्रूव करके ना, बिजनेस को अप्रूव करके हम लोग आगे लेके जा सकते हैं। तो दैट इज, एंड यू आर लिटरली गिविंग विंग्स टू मेनी वुमेन। एग्जैक्टली, kudos my girl, kudos. Thank you. Next question there. Oh my god. Teacher is interviewing today. Teacher is interviewing. कितने सारी communities हैं दुबई में? Oh my god, unlimited. I think every other person thinks that they can make a community, which is fine because when I remember going into the phase where I lost my friendships, and then it was very difficult for me to make friends because I was no longer an employee, and I became an employer by then. And because of that reason, a lot of communities are there. And there was a phase in my life when I lost my friendship and I was no longer an employee. I had turned out to be an employer. It became very difficult to make new friends, in that stage. And I started going out and I started this somewhere early 2022. There was a group called Dubai Must.
It's an Arabic community just meets for a coffee meetup. That's where I started. And I was like, okay. And then it started becoming more and more interesting. But came 2024 or 2023 end, what happened is every 2-3 other people ended From up, that community started creating their own communities. yeah, and just not that, but other communities. Now, especially for us, like, we are Indians, I see a lot of you guys are creating it. Yeah. Create a community, no problem, but create it where, it can add makes yeah, exactly. Value add ho raha hai, to 100% Yeah. we will become the members of that, and we will be more than happy to, empower. Like when you said I purchase things, I'm literally telling them that, you're doing a good job. Keep doing. And when you said जब वो लाइसेंस बनाते हैं ना, उनका एक स्टेप अप हो जाता Yeah. है कि मेरे को अभी ये करना है, अब मेरे को ये करना है. That is kind of a mindset. Communities that are giving value, they will flourish. True. But communities that are, I have seen so many communities formed, अपना WhatsApp ग्रुप बन गया, एक मीटअप कर दिया, नहीं हो पाया उसके बाद. I think it is kind of easy, क्या है, लोगों को लेके आना है और फिर एक मीटअप कर लेंगे, हो जाएंगे. There's lot that goes in the community. Yes. इतने सारे लोग काम करते हैं, मॉडरेट करते हैं, सर्टन रूल्स करते हैं. अगेन काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को अच्छा नहीं लगता वो चीज़. Right. कि यार क्या हम लोगों को तुम लोग बड़े बॉस टाइप में. लकीली वी डोंट गेट सच काइंड ऑफ पीपल जो हमें ऐसे कोई कभी पॉइंट आउट के नहीं 4 सालों में. लेकिन हम लोगों ने वैसे वो रन किया है, उसमें से फिर बाद में काफ़ी सारी और कम्युनिटीज़ करें. वी ट्राइंग अ लेवल बेस्ट कि हम वैल्यू ऐड करें. अगेन अनदर थिंग, आई टेल माई पीपल गो एवरीवेयर. Why I tell that? Because I cannot provide you everything. This much I can provide, and everyone gets something or the other to the table. तो इससे आप लोग ग्रो होते हैं, आपको ग्रो होने का चांसेस ज़्यादा रहता है एज अ वुमेन. मतलब अगर आप होम मेकर हो, you'll get more friends. अगर आप बिजनेस ओनर हो तो you'll get more leads. And आपको वर्कशॉप भी वैसे ही मिलते हैं, no? But Aisha, when you do that, no, it's good. I'm not saying no. Okay, I myself am a part of a lot of communities. If the same crowd is in majority of the communities, the purpose does not get fulfilled. बट अगेन यू कैन नॉट कीप देम ऑल्सो विथ यू. तो एक ऐसा होता है कि वो एक अटैचमेंट किसी के साथ नहीं रखना चाहिए अपने कम्युनिटी पे कि आप मेरे साथ ही रहो. बिकॉज वी नो इवन इफ यू आर गोइंग टू बोलो कि नहीं जाए, वो सिक्योरिटी भी करेंगे, सब लोग करेंगे. मतलब अपने को नहीं गिरना है वो वाली इसमें जहाँ पे हम लोगों को पकड़े रहे. ये लाइक हमारा कम्युनिटी ओपन है फॉर यू, आप आओ जब आपको लगता है, नहीं लगता है आप चले जाओ. अभी नाउ व्हाट यू सेड इज करेक्ट बिकॉज यू आर इनटू मेनी नेटवर्किंग ग्रुप्स. यू हैव सीन कि यही लोग इधर मिल रहे हैं, यही लोग इधर मिल रहे हैं, बिकॉज देयर सर्टेन सेट ऑफ पीपल हु आर नेटवर्किंग Like me, you'll find me in all the networking events. pro networker. हाँ, वो वाला है. सो दूसरा क्वेश्चन इसको जाता है मेरा, आर ऑल द कम्युनिटीज हियर लाइक एनीवन कैन ओपन अ कम्युनिटी? See, actually no. Because पहले क्या था, it was like every next door person was opening a community. Because लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आप जो भी कर रहे हो उसके लीगैलिटीज़ होते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. लोग को समझ में नहीं आता ये चीज़. वो जस्ट क्या देखते हैं, ओके एक इवेंट अटेंड किया, अरे वाह ये तो मज़ा है, ये पर्सन ने तो 50 दिरहम पर पर्सन चार्ज किया, यहाँ पे तो आराम से 100 लोग आ गए, ये तो मज़े की बात है. एक इवेंट करो, पैसा बनाओ, और क्या. नहीं, ऐसा नहीं होता है यार. पहले कम्युनिटीज़ के लिए लाइसेंस नहीं था. जो भी था डिफरेंट था, बहुत एक्सपेंसिव था, ऑलमोस्ट 15,000 दिरहम्स का था, तो लोग नहीं लेते थे. अभी क्या हो गया है, फ्री जोन्स ऑल्सो स्टार्टेड गिविंग कम्युनिटी लाइसेंसेस. सो लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है. So anyone who owns a community in the UAE needs to have a license. Before they didn't, so they are still there. They are just holding on to that. But now, as per new regulation, how many months it has been? Actually speaking, before only a free zone called DMCC had the community license, and the license cost also was again 60,000 dirhams. Any offers you get maybe less or more or less approximately, but now even for like 6,000 dirhams you are getting community licenses. You're getting community Yes, you're getting community licenses, but people are not understanding the importance, the legalities and the fact, because you are bringing multiple people in one place for something like a mutual gathering के लिए. It is a fun event, it's a like a personal event, it's absolutely fine. आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, टिकट्स बेच रहे हो, स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, बट लीगल नहीं कर रहे हो. एंड उनको समझ में नहीं आ रहा है ये कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़ लीगल. और एक थोड़े बोलते हैं पवित्रा कि आज इज फ्री,
we're just calling people. We are taking money from them to do the event, but I'm not taking anything for myself. So what about that? Then उसको भी license then चाहिए? don't call yourself a community ना. It's not a Don't, community. because see, it's not, I'm not talking about 10-20 people. अगर आप एक बड़ा सा community चला रहे हो and you're getting How many members recognized, make a community minimum? I think more than 50 is a community. More than 50 is a You know, 10-20 you can call a team. More than 50 is a community because a lot of people are connected there. And आप कर रहे हो, you're recognized. The worst part of community, it's easy to be recognized. You know, आप under the table कुछ नहीं कर पाओगे because you're having 500 people involved, or I'm sorry, 50 people involved. है ना, तो कम्युनिटी बन गया, लोग देख रहे हैं, आप वीडियोस डाल रहे हो, you're out there. तो मैं क्या सजेस्ट करूँगी, आप पैसे ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आप एक कम्युनिटी बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो वो कम्युनिटी में, मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लीगलाइज करो. अगर आप कम्युनिटी रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, एटलीस्ट एक इवेंट्स मैनेजमेंट का लाइसेंस ले ले, DDE ट्रेडर ले ले. बट सिर्फ लाइसेंस लेने में कुछ नहीं जाता है. अभी टैक्सेशन आ गया है. यू नो, व्हेन यू आर टेकिंग अ कंपनी, मतलब एक कंपनी आप फॉर्म कर रहे हो, उसमें बहुत सारे लीगैलिटीज होते हैं. लाइसेंस लेके मैंने छोड़ दिया, रिन्यूअल नहीं किया, क्या मतलब? आपने लाइसेंस लिया है, एग्जैक्ट एक्टिविटी नहीं लिया, ट्रेडिंग का लेके आप इवेंट्स कर रहे हो, क्या मतलब? आपने लाइसेंस हैपनिंग अ लॉट नाउअडेज. Exactly. ई-ट्रेड लाइसेंस लेके सब लोग कम्युनिटी का करके वो लोग टैग दे रहे हैं. हाँ, हस्बैंड का लाइसेंस है, मैंने उसका यूज कर लिया. आपने कैसे यूज कर लिया? राइट, आपका हस्बैंड का लाइसेंस है कुछ और आप जो बिजनेस कर रहे हो, हस्बैंड का लाइसेंस है ट्रेडिंग, राइट, ही इज इनटू ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल राइस एंड अदर ग्रेन्स ट्रेडिंग. आप बना रहे हो घर से केक्स एंड आपने बोला हस्बैंड का लाइसेंस है, मैंने यूज कर लिया. कैसे यूज कर लिया? है ना, आप एडवर्टाइज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, स्पॉन्सरशिप पता नहीं क्या क्या, एंड नो लाइसेंस. सब ठीक है, मैं बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ है. थर्ड पर्सन कभी भी आपको रिपोर्ट नहीं करेगा. आपके पीपल जो आपके साथ बैठ के आपका केक खा रहा है ना, क्योंकि हर एक केक या बेकर विदाउट लाइसेंस नहीं है. 5 लोग अगर बेकर हैं, उसमें एक बंदे के पास लाइसेंस है, उसने इन्वेस्ट किया है, उसने पैसे लगाए हैं, और देयर आर 4 अदर पीपल जो बिना लाइसेंस के बिजनेस उठा रहे हैं. तो ये बंदा क्या करेगा? अपना ही बंदा है, बट इसने लाइसेंस लिया है, सब कुछ लीगली कर रहा है, और 4 और बंदे हैं जिन्होंने ना इन्वेस्ट किया, ना लीगल किया, ना कुछ भी किया, और सारे केक ऑर्डर्स लेके जा रहे हैं. तो वो बंदा रिपोर्ट करेगा आपको. Have you got any instances there कि ऐसे जो नॉन लाइसेंस वालों को कुछ रिपोर्ट किया, ऐसा कभी आया? हाँ, ऐसा कोई? हुआ है. बिकॉज बहुत सिंपल है, अगर कोई भी बिना लाइसेंस का बिजनेस कर रहा है, बहुत सिंपल है. DD को ईमेल भेज सकते हैं, या म्युनिसिपैलिटी को ये कर सकते हैं, कंप्लेन रेज कर सकते हैं. उसके बाद बिकॉज बहुत सारे बिजनेस हो रहे हैं, गवर्नमेंट के पास इतना बेफजूल टाइम नहीं है कि वो बैठ के हर एक बंदा जो इंस्टाग्राम अकाउंट रख के बिजनेस कर रहा है उसको चेक करे. बट द मोमेंट देयर इज अ कंप्लेन, they look into it's it. done. It's done. So you've come across something like that? Me personally, I have not come across anything like that because I believe in license. मैं business बाद में start करती हूँ, license नहीं, पहले मतलब तुम्हारे सर्कल में कहीं देखा है तुमने ऐसे? Because you are also into business setup ना, आप भी करते हो? No, I have not. You have not seen such kind of a thing? No. Okay. But you know, legalities. She does more women entrepreneurship kind of a thing. That's You why do corporate वाला? more or less, yeah. Okay. तो क्या होता है, जो लीगैलिटीज होते हैं पैरेलल हैं, मतलब लीगल तो आपको बनना ही बनना है. आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हो. अभी मेरे को इनको रेफर करना है, आपको इनके पास लाइसेंस है, सब कुछ है, तो मैं आपको बोल रही हूँ प्रोकास्ट जाओ करो, टीम है, लाइसेंस है, सब कुछ है. अगर बिना लाइसेंस का कर रहा है, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं रेफर करूँ, मैं फिर भी रेफर नहीं कर पाऊंगी. द सेम गोज विथ एनी बिजनेस. मैं कोलैबोरेट करना चाहती हूँ, मेरे पास लाइसेंस है, बट जो मैं कोलैबोरेट करना चाहती हूँ उसके पास लाइसेंस नहीं है, मैं तो सोचूंगी ना. Absolutely. तो आप बिजनेस लूज कर रहे हो, लीगैलिटीज में आपका रिस्क है, आपने घर वर छोड़ के यहाँ पे अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, तो आप सबको लीगल इश्यूज में डाल रहे हो. बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, तो ठीक से करते हैं. दैट्स अबाउट इट. अभी हर सेकंड बंदा पॉडकास्ट कर रहा है. तुम दोनों भी कर रहे हो? Yes, very much. आपके साथ और आपके बिना भी. तुम दोनों क्यों कर रहे हो भाई? पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो? Why are you my competitors? Okay, I am your competitor and the entire world's competitor. Sole purpose was to rent out the studio. Okay, but after doing it for some time, I'm enjoying it. Yes. Okay, and I feel this is going to be one of my company that's going to put me in different. Yes. Me, Marina, in a different world Absolutely. altogether. That's what that's the boost I have got, which I did not have before starting the Yes. podcast. Yes. Right? And more importantly,
सब कम्युनिटी बना रहे हैं, हम भी तो बना रहे हैं ना. सब केक बना रहे हैं, हम भी तो बना रहे हैं ना. सब दिवाली के लिए शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं ना. तो क्यों नहीं? And the market is saturated. Yeah. People do, nowadays it's very difficult to get new ideas. Yeah. Okay, fresh new. Everybody is copying. Yeah. And what's the harm in that? I want to know that. So I think that's fine. It's like drawing inspiration. We cannot say copying. But अगर sometimes ऐसे भी होता है कि like I like something of someone, then I'll tell इससे मैंने सीखा है, ये कर रही थी तो मेरे को यहाँ से आइडिया आया था. Like the game we did brunch के लिए, मैं किसी बर्थडे पार्टी में गई थी and then I told वहाँ से इंस्पिरेशन. So I think when you give that kind of credit sometimes कि कहाँ से हुआ था, then I think it doesn't make like वो copying वाले इसमें नहीं आता है. Also I want to add, I have my set of people. You Yeah. have your set. You have your set. We have mutual also. And people always used to look at Bollywood stars or a famous writer. They are not accessible to you. Right. But we are accessible to our 50, 100 people. Right. Right? So those people can access us and talk to us. Yeah. about Whereas their life. it's very difficult to meet Shah Rukh Khan or Priyanka Chopra or Elon Musk. Exactly. Right? Because they have ideas, but they are not approachable. Right. And we are. So it's whoever has the strength and ability to do a podcast or any kind of business where you feel like, you can take the step up, come up there. You never know whom you are inspiring. Absolutely. True. So it is like अभी तीनों दोस्त हैं हम लोग, so people know us as trio as well. So वो काफी ज्यादा comparison भी होता है हम लोगों के बीच में. And we are absolutely okay. I'm like मेरे लोग आते हैं, if they want to do with you all also, all the more better because you guys will have that kind of a crowd. नहीं, actually speaking, only one thing that is common is Procast. क्योंकि उसका है a little more fun element, a little bit of commercial element, but it's more of what Vibe you energy. are and Vibe vibe energy. and fun. It's like that. मेरा is completely different because मेरा startup related है, business related है, right? मैं बहुत specific लोगों को choose करती हूँ. मेरे topics होते हैं, like I want to bring in a topic and मैं उस पे try करती हूँ मैं कोई speaker लाना. Right. आपका तो full commercial है. You do promotions, you do ट्रेलर लॉन्च, यू डू सो मच. आपका पूरा कमर्शियल है. मेरा कमर्शियल नहीं है बिकॉज फन वाइब भी है, उसका थोड़ा ऐड कर सकती है. Fun bites भी है and they get more visibility. Visibility and all of that because you have a big community, you have a big crowd, organic crowd, please note. तो ये चीज है. मेरा क्या था, मेरे बचपन से ना whenever I have friends, I used to talk to them कि how's your life? What's your life? What are you going through? Is your life good? Is your life fun? Are you happy? ऐसा मेरे questions होते थे मेरे friends के साथ. And then they used to open up a little bit. And then I used to see कि ये मेरा friend जो इतना happy है, keeps cracking jokes in the college and is making everyone laugh, has such a deep story behind him and all of that. So मुझे always I used to ask my friends कि what is it? You can be open with me. Tell me because I also had a different childhood, a different family thing, and a lot of things that I was never vocal about. And I had a different face altogether when it comes to people always trying to be the bubbly and positive person, but it's not always the same behind, right? तो मेरे को always वो जानना था. So that was there, but I didn't know what is the mode to bring it out. Journalism तो पढ़ा नहीं है, journalism तो कर नहीं सकते. सिर्फ कॉलेज में और स्कूल में hosting और MC और यही किया है. Nothing more than that. That's when I would like to be, I'm very, very grateful to Bilna Sandeep. She invited me on a podcast. And that was my first ever podcast experience. And it was so amazing कि वहाँ से जो spark मिला. If you see, and not just spark, I gained so many organic followers. मेरे organic reach जो हुआ था, and I'm very, very grateful. उसने वो किया free of charge, by the way, because at that time we were in the hype people in the group and community because we were part of a lot of community and that is why she had invited us for free. वरना वो किसी को free में जैसे commercial costings होते हैं उनका भी free नहीं है. But because she had a lot of inputs and juicy stuff that topics that she had, उन्होंने हमें फ्री में बुलाया था, किया था. So उसको मरीना को इंस्पिरेशन मिला था to open a podcast because she is the investor mindset person. And मुझे मिला था एक आइडिया जो मेरे बचपन का जो था मेरे थॉट प्रोसेस में कि मुझे कुछ
बात करना है, उनके जर्नी के बारे में बात करना है. आई स्टिल नॉट रीच्ड व्हाट आई एग्जैक्टली वांट मेरे पॉडकास्ट में, बिकॉज आई एम स्टिल ट्राइंग टू बी एज सटल एंड स्लोली बट मेरा एक्चुअली मकसद है कि ये बंदा कौन है, ये बंदा जो आप देखते हो कि बबली है, ऐसा है, उसका बैक स्टोरी क्या है, बिकॉज आई अंडरस्टूड कि नॉट एवरीवन इज happy to be vocal about it, but they are more than happy to talk about their business, and I'm a business setup person, so I was like ठीक है, let's start from the business setup, talk about your business, कि सब लोग को जब licensing और business setup का होता है एक डर सा होता है, you know, and at one stage वो डर overcome करके license लेते हैं, so that is why I kept scary startup stories, so how did you overcome your fear, license लिया, बस इतना अभी के लिए, but going forward it will not be a commercial or business. By God's grace I'll have enough funds to invest on my own show, and it will be about life stories of people and who genuinely want to be open कि उनका कैसा life change हुआ, and it will be helpful for other people also because सबके पीछे एक story होता है, so that I want to say, but there's no topic comparison between us क्योंकि मेरा completely different है and मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं दूसरे टाइप ऑफ ऑडियंस टारगेट करूँ जो बिजनेस ओनर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, बट उन्होंने ओवरकम किया है वो स्ट्रगल. हर्स इज मोर ऑफ फन एंड हर्स का द बेस्ट पार्ट इज एज लिमिट नहीं है, हमारे इसमें भी नहीं है एज लिमिट. वी हैव केप्ट ना कॉम्पिटिटर, शी इज ट्राइंग टू बिकम अ कॉम्पिटिटर. सो मेरे पास 3 साल का बच्चा आने वाला है नेक्स्ट, तो ली खबरदार मार पड़ेगी तेरे को. But yeah, she has her own element to bring to her podcast. Exactly. The way she talks, the way she gets that vibe वहाँ पे वो अलग है. जो अपना मेरा because I have the teacher thing in me, तो even I didn't want to keep any limit. मेरे को बताया गया था कि you choose one category. I'm like I cannot. It will be monotonous और मेरे को फिर मैं खुद ही बोर हो जाऊंगी. बताओ करके. I cannot do that. You see now तुम जैसे serial killer बता रही हो, मेरे को serial entrepreneur. I want everything वहाँ पे. So मेरे को थोड़ा ऊपर नीचे चाहिए. Then you know वो थोड़ा अच्छा लगेगा करके. Right. So हम लोग फटाफट से मूव करते हैं. I don't want these people to this. हमारा फटाफट होगा, थोड़ा जूसी वाले ही होंगे. Let's keep it crisp and you know answer. आंसर करना लेकिन थोड़ा फटाफट से करेंगे. ओके. पॉडकास्ट फ्री होने चाहिए? नहीं. व्हाट डू यू थिंक? बोथ. फ्री कब होना चाहिए? फ्री तब होना चाहिए जब तुम्हारा गेस्ट इज एडिंग वैल्यू टू यू. ओके. और पेड तब होना चाहिए व्हेन आई एम एडिंग वैल्यू टू योर बिजनेस. एक्चुअली कैन वी एक स्टैंडर्ड या अवेयरनेस में लाना चाहती हूँ. पॉडकास्ट में फ्री वर्ड हटा देना चाहिए, बिकॉज देयर इज टू थिंग, राइट? पॉडकास्ट में इतने सारे लोग काम करते हैं. देयर इज इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज कैमरा, देयर इज एडिटिंग, देयर इज मार्केट, देयर इज यू नो मेकअप चार्ज, देयर इज सो मेनी चार्जेस, राइट? अगर मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ, झुमका चार्जेस, अगर होस्ट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका कोई यू नो पॉइंट होगा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने गेस्ट से. अगर आप एज अ गेस्ट इनवाइट हो रहे हो, यू आर प्लेइंग दैट रोल. अगर आपको प्रमोशन चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, मार्केटिंग कॉस्ट है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. तो फ्री कहाँ से आया? आई डोंट नो हु आर द पीपल हु वांट so much of exposure, they want so much of marketing, इतना कुछ अपने बिजनेस के बारे में वो बात करना चाहते हैं, बट फ्री में करना चाहते हैं. तो आई डोंट नो, दुबई में ऑक्सीजन के अलावा तो कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है. तो आई डोंट नो, फ्री वर्ड पॉडकास्ट एक्चुअली मार्केटिंग से वो फ्री वर्ड निकालना चाहिए. आइदर यू आर कोलैबोरेटिंग और यू आर इन्वेस्टिंग. खत्म बात. और ये है ना कि अपने पास रीच भी है. वी आर गिविंग यू दैट काइंड ऑफ ऑडियंस एज वेल, प्लेटफॉर्म यू नो, जो ऑलरेडी हमने इतने सालों से एस्टैब्लिश किया है. हमने इतना गधा मजूरी किया है, एंड वी आर गिविंग यू दैट प्लेटफॉर्म. ओके. और उसमें मेरे को था कि माई टीम हैड रीच्ड आउट टू फ्यू पीपल हमारे इसमें से. वी थॉट कि दे वुड बी इंटरेस्टेड टू पुट अप देयर स्टोरीज, जस्ट जॉइन अस फॉर द पॉडकास्ट, वेयर वी वर टोल्ड दैट यू नो वी डोंट डू फॉर पेड, इट इज़ फ्री. एंड माई टीम वॉज लाइक, मैम सब हम कर ही रहे हैं इतना काम, इतना कुछ होता है उसके पीछे, एंड इट इज़ नॉट अवार्ड दैट वी आर गिविंग देम कि मेरे को ये नो फ्री चाहिए करके. इट इज़ समथिंग लाइक आपकी स्टोरी आ रही है यहाँ पे, यू ऑब्वियसली लाइक यू सेड मार्केटिंग हो रही है. एग्जैक्टली. यू आर गेटिंग अ प्लेटफॉर्म, आप शाइन होगे, ब्रांड एक्सपोजर मिलेगा, पर्सनल एक्सपोजर भी मिलेगा, अपना खुद का ब्रांड का भी. So all of these things are happening. So how can it be non-paid? तो ये वाला चीज था. So तुम लोगों को कोई आया, किसी ने ऐसा बोला है अभी? लोग आ रहे हैं तुम्हारे पास? I don't want to pay for this करके. So I will answer this. क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, पॉडकास्ट देखते हैं, दूसरे पॉडकास्ट देखते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है. तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आई वांट टू नो कि आपका माइंडसेट क्या है, आपका बिजनेस क्या है, सब कुछ आपको कैसा लगा पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा. आप तक रीच हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग तक रीच होएगा.
कॉस्ट इन्वॉल्व है इसमें, बहुत सारे चार्जेस इन्वॉल्व है, मार्केटिंग, शूटिंग, स्टूडियो चार्जेस, एडिटिंग चार्जेस, राइट, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो अगर आप चाहते हो ये मार्केटिंग आपके लिए हो तो उसके लिए तो चार्जेस होंगे ना। एब्सोल्युटली। आपको शायद ये इन्वेस्टमेंट होगा इनिशियल के लिए, बट जैसे ही आप वो प्लेटफॉर्म में आ जाते हो, आपको रिकग्निशन मिल जाता है, मे बी अगर आपने अच्छा किया है पॉडकास्ट, तो नेक्स्ट एज अ गेस्ट यू विल बी इनवाइटेड, एंड अगर आप गेस्ट इनविटेशन मिलता है एज अ गेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट तो है बट द होस्ट विल टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। पैसे तो जा रहे हैं, अभी कौन वो पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ओनली ये डिफरेंस है। तो मैं उनको बोलती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका बजट नहीं है, स्टार्टिंग है, तो मे बी यू सी अदर वेज ऑफ मार्केटिंग दिस। व्हेन यू आर रेडी आप आ सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है पॉडकास्ट इज नॉट फॉर एवरीबडी। Podcast is not for everybody at all, because few people are very good at what they do but they're not good at speaking. तो even अगर वो आपको पैसे भी देंगे, आप आ गए, सब कुछ रेडी है, स्टूडियो रेडी, अमेजिंग स्टूडियो, लाइटिंग, सब कुछ है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इट्स वेस्ट ऑफ मनी, राइट? एंड समवन इज वेरी गुड एट टॉकिंग बट उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इट्स नॉट। सो पॉडकास्ट इज नॉट फॉर एवरीबडी, एंड for the right guest and the right host, right podcast will happen. Yeah. We deserve people who are good at talking, who are good at their business, and who are grateful. Right. As simple as that. And humble, guys. And अगर आपने एडवाइस भी लेना है, अगर आपको एडवाइस चाहिए कि पॉडकास्ट अच्छा है नहीं अच्छा है, स्पीक टू पीपल हु आर वेल एक्सपीरियंस्ड विद द प्लेटफॉर्म, जिनको प्रोज एंड कॉन्स पता हो, जिन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हुए हो, जिन्होंने इंटरव्यूज लिया है, दिया है, उनसे पूछें और उनके एडवाइस लें। मे बी दे कैन गिव यू रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, रियलिस्टिक आइडिया। बस एक करने से कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाता है, और 2-3 लोग से बात करें डेफिनेटली, एंड देन आप डिसाइड लें अगर ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा है नहीं है, बिकॉज पॉडकास्ट अभी ट्रेंड में है। बिफोर द ट्रेंड इज ओवर वी हैव टू मेक श्योर हमने उसका फायदा उठाया है। एज सिंपल एज दैट। And again, the price I is have vary. an add-on to do. If you are invited in one podcast, try and go to 10 more podcasts by investing your own money. You know what will happen? I'm not trying to sell my product. Your visibility will increase. And that is the most important thing for your business. Investment in the right podcast as well, because there are people who do not have reach, but they are doing podcasts. Yes. वो लोग उनके पास नहीं है, तो फिर अगर उनके पास अगर हमारा बिजनेस जाके हम करना चाहते हैं, आई डोंट थिंक दैट मेक्स सेंस। बट अगेन उनके पास प्रॉपर सेटअप वगैरह है। एक अगर तुम्हारे लिए प्रोफेशनल वीडियो चाहिए, देन यू कैन गो इन्वेस्ट एंड गो देयर एंड डू इट। बट इफ इट इज फॉर रीच, देन आई थिंक, बिकॉज हर एक का प्रोज एंड कॉन्स है। Exactly. इवन द होस्ट के पास है ना, वो होना चाहिए उनके पास एक प्लेटफॉर्म। Exactly. आई थिंक दैट ऑल्सो इज अ प्लस पॉइंट। एग्जैक्टली, बिकॉज वेरी गुड पॉइंट, बिकॉज अगर आप देखो मेरे सिर्फ 1000 फॉलोअर्स ही हैं ऑर्गेनिक। हाँ, और मैं जो कर रही हूँ, मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ। अगर आप देखो 50 to 60% ऑफ माई गेस्ट मैं एज अ गेस्ट इन्वाइट कर रही हूँ, मतलब इन्वेस्टमेंट जा रहा है। मरीना नोज इट बिकॉज आई एम पेइंग द इनवॉइसेस, मेरे इन्वेस्टमेंट से जा रहे हैं। बहुत कम 1 या 2 होते हैं जो अपने आप पे करके मैं उनको, यहाँ से वो किक स्टार्ट होते हैं, ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत फैंसी नहीं होता। उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पॉडकास्ट पे अटेंड हो जाते हैं। देखा तुम्हारे गेस्ट मेरे पास जब आए तो वेल प्रिपेयर्ड बिकॉज हाँ, हम मेक श्योर करते हैं उनको कॉन्फिडेंस मेरे मिलता पास है। भेजना अगर वो मेरे वाइफ के हैं तो। So ये बेनिफिट है। इट्स फॉर मी, इट्स नॉट अबाउट द रीच, बट वो जो पॉलिश उनको मिलता है, कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, उनको किक स्टार्ट हो जाता है। मैं उनको थोड़ा कंफर्टेबल कर देती हूँ, उसके बाद दे बिकम एक्सपर्ट्स इन दैट। उसके बाद दे आर जस्ट फ्लाइंग हाई इन कलर्स, इन कलरफुल। तो मेरे लिए वो है कि तो लाइसेंस चाहिए होती है खुद का ये पॉडकास्ट शूट करने के लिए, या स्टूडियो तो है, चाहिए ही है, बट देयर मेनी पीपल हु आर डूइंग दिस सेटअप एट होम एंड दे आर डूइंग दैट। एक्चुअली स्पीकिंग, आई विल टेल यू कब लाइसेंस चाहिए, कब लाइसेंस नहीं चाहिए। मैं एक पॉडकास्ट कर रही हूँ अपना बिजनेस के लिए, मैं खुद पॉडकास्ट करती हूँ, मैं खुद वीडियोस बनाती हूँ, मैं सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में बात कर रही हूँ, खत्म। लाइसेंस नहीं चाहिए उसके नहीं चाहिए, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव लाइसेंस फॉर योर बिजनेस। ये मेरा पर्सनल मार्केटिंग हो गया, ठीक है। अभी देयर आर सेकंड वर्जन ऑफ पीपल जो कमर्शियल, उनका कुछ भी नहीं है, उनका सिर्फ वीडियोस है। अभी इंस्टाग्राम में वीडियोस डालने के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए, आपने डांस वीडियोस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। सो ऐसा है जिसमें पर्सनल टॉपिक्स हैं, पर्सनल हेल्थ रिलेटेड, कुछ भी वहां पे बेचा नहीं जा रहा है या फिर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। इट्स ओनली अबाउट कॉमन टॉपिक्स, कॉमन फ्रेंडली टॉपिक्स, वाइब टॉपिक्स। बट थर्ड,
अगर आप किसी और के ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हो, आप लोग को इन्फ्लुएंस कर रहे हो आपके सर्विस या आपसे आने के लिए, आप थर्ड पार्टी को प्रमोट कर रहे हो, थर्ड पार्टी लोग का ब्रांड के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एटलीस्ट मार्केटिंग एक्टिविटी तो आप रखोगे ना. अब बिना लाइसेंस का आप कैसे कर सकते हो? राइट, Because सो you दिस should इज लाइक be द the eligible इन्फ्लुएंसर person. थिंग. इन्फ्लुएंसर में आएगा ये सारा. योर इन्फ्लुएंसिंग और योर मार्केटिंग. Marketing, आपको okay. चूज करना पड़ेगा. अगर आप इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसिंग लाइसेंस लोगे, लाइक इंटरनेट कंटेंट प्रोवाइडर, ब्लॉगिंग. आप मार्केटिंग कर रहे हो उस बंदे का, आप इन्फ्लुएंसर नहीं हो, बट यू आर जस्ट मार्केटिंग फॉर दैट पर्सन. आप मार्केटिंग एक्टिविटी लोगे. Okay, but everybody needs to have a license even to do a have a podcast. legal safety, definitely yes. Okay, got it. I heard you guys are not calling people on your podcast. क्यों? क्या हो गया तुम लोगों को प्रॉब्लम? थोड़े लोगों को बुलाया नहीं तुम लोगों ने? कौन है वो थोड़े लोग? नहीं, आई फील हम सबको क्यों नहीं बुला रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर बट क्यों हमें नहीं भी बुला रहे फिर भी? टाइम चाहिए उनको बुलाने के लिए, और थोड़े लोग को इंटेंशनली हम नहीं बुला रहे हैं. तू क्यों नहीं बुला रही है मरीना? तू क्या? तो बुला सकती थी ना, तेरा खुद का स्टूडियो है, क्यों नहीं बुलाया तूने लोगों को? Al Garud, Sara Building, 304, office number, podcast studio is just right here. Miss Twiga is available on phone calls and WhatsApp messages. Contact her and get your registrations done. नहीं, मैं बताती हूँ. मरीना, मैंने आपको बोला ना, मरीना ऐसी एक बंदी है जो सबको सपोर्ट करती है, दिल से सपोर्ट करती है, एंड जब वो लोग चाटा मार देते हैं तो वो उठ जाती है उसके बाद. तो मारे इसको चाटा अभी इसने. You are full following of mine. तो एक दो लोग ने Thank उसको you. चाटा मारा, उसके बाद वो अभी खुल गई है. अभी वो सोच के करती है जो भी करती है. एक्चुअली सबको इसलिए नहीं सोच के बुला ही रही है करना ना वो? पड़ेगा. हाँ. मैंने सोच समझ के तुम्हें बुलाया था. सो पहले वो बिना सोचे करती थी, अभी सोच समझ के कर हाँ, रही है, अभी पूरा विच लगा इज रही द है. राइट थिंग टू डू, बिकॉज उसका लेवल बढ़ रहा है, उसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है. इसमें एटीट्यूड या ईगो नहीं है. इट्स ऑलवेज गुड टू रेज अप योर बार्स, आपका स्टैंडर्ड सेट करना, क्योंकि जब That's हम what I tell बहुत लोग का ये मैच करने, जब हम बहुत नीचा जाते हैं, इनडायरेक्टली हम भी नीचा दिखते हैं. तो इट्स ओके, शी इज रेज्ड हर स्टैंडर्ड हाई, एंड आई थिंक वी एज अ होस्ट हैव टू कीप आवर स्टैंडर्ड्स, क्योंकि हमारे शो के लिए जो है ऑडियंस वो हमारे पास आएंगे, जो अमेजिंग गेस्ट्स हैं, जो स्पीकर्स हैं वो भी आएंगे, मार्केटिंग भी होगा, खुशी खुशी पैसे भी देंगे. सो नो नीड टू वरी अबाउट पीपल हु वांटेड टू गेट इट फॉर हमारे फ्री. पॉडकास्ट का नाम क्या है वैसे? स्कैरी स्टार्टअप स्टोरीज, स्कैरी स्टार्टअप स्टोरीज विद पवित्रा. इसने नाम नहीं रखा, नामकरण नहीं किया ना? वाइब विद मरीना. लिखा है उसने? Yeah. That's a good one. Vibe with Marina. Vibe with Marina. यही है? नहीं रे. You do with Procast only. Procast by Marina, ऐसा कुछ कर ले. एक मिनट, जिन लोगों को मैं इनवाइट नहीं कर रही हूँ ना, प्लीज स्कैरी स्टार्टअप स्टोरीज एंड चाय शाय विद आयशा पे आ जाना. प्लीज हमारे पैकेजेस हम भेज देंगे आपको. फ्री में पूछेंगे, डीएम में दे देंगे. फ्री में पूछेंगे. फ्री अभी तक हमने किया नहीं, इंशाल्लाह नहीं करना है मेरे को. ओके गर्ल्स, सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल. हाउ डू यू फील बीइंग एट AES? तू बता दे. Okay. For me, it has been a good 4 months practical, but I know about you guys from good 8 months now. I think the maximum exposure that I have got in terms of when I am with you or I am around your group, your fellow members know me. या चक दे इंडिया में सब पहचान रहे उसको. So like, we know you. You're Marina. Okay? It felt like I'm Shah Rukh Khan. Wow. बोला उसने लोगों ने. And I'm like, and that kind of an exposure is what AES got for me. And just not that, I like going out. So when you did the staycation, I pulled this girl in and I said, let's go. And that was one thing which I feel is a unique USP of yours. Maybe people will copy, but right now it's a unique thing that you are doing. And apart from that, seeing you guys at Procast Studio and Marina Pearl has given me a very good visibility. Alhamdulillah. So for me, AES has been an added value. It's like, paid में भी इतना marketing नहीं मिलेगा. Yeah, it's not sponsored, guys. But that's the impact Aisha has done for my business I love and my personal. Like, कोई इतना efforts नहीं लगाएगा कि,
bring in the jewelry, make you wear the sari, put a kajal so that she can cry, and put a makeup on. I know very few people do it, and thank you for being that. I love you. Most importantly, you take your people and go along with them. That's why you say Growing you're a people's person, and yeah. you're truly our people's person. That's all for AES. And AES will, I can see it growing, and getting exposed to children. My space, having so many children come to my space, that itself is an added value for. And you're not just doing entrepreneur के लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी है, इधर भी है, उधर भी है. I'm sure कल कुछ चीजें सीनियर सिटीजन के लिए भी होंगी, और मेरी मम्मी को I'll make sure she's available. Yeah. In Isn't it? process, inshallah. Yeah. I love you, Marina. You have a team like that. जो मेरे को first day पे ना, I had the best kind of impression. When I did the event, मेरे को था कि ये होगा या नहीं करके. And when your people were there and it was like bang on point, then I was like, यार, this is something I must. वो मुझे first वाला impression मेरा जबरदस्त बैठा, and I was like, करो इनकी प्रमोशन धड़ाधड़, सब जगह पोस्ट कर दो इनको. Yeah, and I was not expecting that, I was not expecting at all कि कोई इतना भी आवाज होगा, but I could see like me and Twiga, we were like धड़ाधड़ की ये reels आ रहे हैं, ये हमें shout outs मिल रहे हैं. The kind of exposure, I might have given spaces for free for some people. They might have not given that kind of an exposure, but you paying me and then giving me exposure, that is win-win. Yeah. Win-win type. We look for such clients, guys. Yeah. Okay, तुम बताओ पवित्रा. Okay, first of all, I'm very grateful for being a part of AES. Before it was हंस के भी WHH. बता सकती है. Before it was WHH, हाँ, because actually emotional हो रही थी, इसीलिए I was trying to make my straight face. Before it was WHH, and the best part था कि मैंने कुछ भी expect करके वहाँ पे वो ब्रांच में नहीं आई थी. मैंने कुछ business expect करके या clients expect करके नहीं आई थी. मैं आई थी क्योंकि मेरे लिए बहुत नया concept था कि only for homemakers, जो तरसते हैं कि कोई मीटअप हो जाए, कोई दोस्त मिल जाए. मैं ये छोड़ के बाहर जा रही हूँ, तो मुझे ये I wanted to experience that. I was working all my life, and मेरे को वो एक चीज़ मुझे हमेशा लगता था कि यार हाँ, एक दिन बस होम मेकर बन जाओ, लाइफ ईजी हो जाएगा. बट उस दिन जब मैं आई थी, इतने सारे इमोशंस, बिकॉज तब मुझे पता चला कि लोग बहुत इजीली जज करते हैं. अरे यार, होम मेकर्स के मीटअप में क्या जाके क्या मुझे मिलेगा, मुझे क्या बिजनेस मिलेगा. एक्सक्यूज मी, एक मिनट वेट करो बिफोर यू जज, बिकॉज दे आर एम्बिशियस, दे आर सो मच वर्क ओरिएंटेड. क्योंकि वो लोग मे बी दे आर होम मेकर्स, बट उनमें जो पैशन है, वो जो आग है, मुझे उस दिन पता चला. एंड देन दे आर ऑल्सो सीरियस. तो मेरे को क्या हुआ, देवर अ लॉट ऑफ पीपल, उनको एजुकेशन नहीं था अबाउट द लाइसेंसिंग, उनको अवेयरनेस नहीं था. एंड जैसे ही मैं गई एंड मैं दे रही थी अवेयरनेस और इनको फ्री कंसल्टेशन दे रही थी, मोस्ट ऑफ देम ने लाइसेंस लेना चालू किया. उसके बाद इट वॉज लाइक यू सेड, दे गॉट विंग्स एंड अ क्राउन टू fly with their business. So it was not a homemakers का thing anymore. Because वहाँ पे इतने सारे लोग were saying I'm a homemaker, but also I do this. I also do websites. मेरे पास है education, मैं website बना सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो अगर आपको चाहिए तो बोलना, मैं करके दूंगी. So ऐसा था. And then slowly I started making very good friends, and मेरे को clients भी मिलने लगे. And इसीलिए अभी irrespective what the branches, because वो बिजनेस के लिए नहीं, वो मेरे लिए एंड इनडायरेक्टली वो बिजनेस के लिए हो जाता है. दैट इज व्हाट AES हैज गिवन मी. तो मुझे क्लाइंट्स मिले, मुझे दोस्त मिले, मुझे आयशा मिली, बहुत सारे स्टेकेशन वगैरह कर दिया मैंने AES के साथ, क्योंकि मैं करना चाहती थी, बट मैं सोच रही थी कि जाऊँ नहीं जाऊँ. देन मरीना वाज लाइक, चलते हैं ना यार, कितना कुछ करते हैं हम, आई नो, ये एक हमारे लिए कर लेते हैं ना. आई वाज लाइक, चलो चलते हैं. एंड इतना मजा आया एक्सेप्ट द आउटफिट चेंज. बिल्कुल थीम नहीं फॉलो की तुम दोनों ने. हाँ, क्योंकि हम एक्चुअली वो लोग नहीं हैं. अभी थैंक्स टू आयशा, झुमका पहन लिया, ये कर लिया, दुपट्टा लगा लिया, सब कुछ कर लिया, तो कर लिया. बट वरना तो नहीं है, क्योंकि हम इतना सोचते भी नहीं है. नेक्स्ट टाइम मैं जबरदस्ती तुमको थीम फॉलो करवाऊंगी. तो वो एक अच्छा था. फॉलोड चक दे इंडिया में,
तब करी And तूने। thank you for making sure that I was there. Yeah. You know, I enjoyed. मेरे पैर ऐसे दुख रहे थे ना दूसरे दिन के लिए. I know. I was like, but मैंने that मिस was an किया experience. बट या कोई बात नहीं, next time और कुछ बहुत आएगा। कुछ और मैं बहुत कुछ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ ग्रोथ एज टुगेदर टचवुड Let's do it together. या बुरी नजर ना लगे किसी की प्लीज Amin. but a lot of more growth as a company, as a community, as a team, as a friend. I'm looking forward to a lot more. Inshallah. Thank you so much, girls, for being there. And thank you, Aisha. I love you. I love you too. AES is Aisha only. So yeah. So when we are saying AES, we are saying Aisha only, guys. So please. And thank you so much for taking out your time on a Sunday. I know you guys don't wake up until 3 baje, but still, Even our parents know that. but still they came for me here all the way. But I am so grateful you took out your time. And I really wanted, your part of the story to be known to my crowd, my audience. Thank you so much for watching my podcast. That's Chai Shai with Aisha, powered by Procast Studio Dubai and AMG Dish Tech Services, your one-stop solution for all your printing, designing, and digital marketing needs. So in case you want to get featured, please reach out to our team, or you can DM us on Instagram @teacher_Aisha Sheikh or @Chai Shai with Aisha. And my team will send you all the packages. See you all. Bye. आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा. मार दे इसको शाहिद को। मैं बोली आज चाय शाय गिरेगा मेरा करके। इसका टाइमर रखा है क्राउड माय ऑडियंस, बिकॉज़ अब तक वो देख रहे हैं साथ में, बट इतना डिटेल में नहीं पता होगा जो आज होगा। गिर गई आयशा, अल्लाह अकबर।